Yes. So today's topic is Lewis dot structure. Lewis dot structure. See, we are doing it already, but you haven't noticed it, or we are just like not mentioning that this is the Lewis dot structure. We are already doing that directly or indirectly. जैसे Lewis dot structure क्या होता है कि Lewis said that if bonds are formed between two compounds, two atoms, if bonds are formed between two atoms, it is due to exchange of either exchange of electrons or sharing of electrons. So if it is due to exchange of electron, then the complete electron will be transferred to the other atom. And if it is due to sharing of electrons, then we'll also try to manage or draw a diagram which will represent that these two electrons are being shared between both the atoms or molecules. So what Lewis dot structure says is it just actually represents electrons with a dot or a cross. It depends कि कैसा structure है. मतलब डिपेंड नहीं, हमारी चॉइस पे कि हम क्या लेना चाहते हैं, डॉट या क्रॉस. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल इट लुईस डॉट स्ट्रक्चर. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखते हैं हम लोग. NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछे तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो आप पहले समझोगे कि हो क्या रहा है. सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है. 2 8 1 ऐसा इसका सिनेरियो, राइट? It will lose one electron and it will become sodium plus, and this will become 2 8 plus 1 electron. Now the chlorine atom, which has 2 8 and bolo 7. 7, very good, has, it will accept one electron from the sodium atom and it will become chlorine minus, and now it will become 2 8 and 8. ठीक है, तो अब देख रहे हो दोनों के वैलेंस शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए. And this is due to exchange of electrons. Sodium loses its electron and chlorine gains that electron. तो इस तरह के कंपाउंड का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा, अगर आपसे कोई बोले, सॉरी, अगर आपसे कोई बोले कि आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो आप लिखोगे सोडियम. ठीक है, अब आपको सोडियम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली सोडियम के अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, तो समझने वाला समझ जाएगा कि सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है. इसका मतलब उसने बाहरी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और इनर सेल में आ गई है बात. कहानी अब इनर सेल पे चल रही है. सिमिलरली क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट करोगे, तो समझने वाले समझ जाएंगे कि क्लोरीन ने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते. So this arrangement of the particular compound which we see right now, which is sodium chloride, is basically a result of Lewis dot structure, where every dot is an electron and there are 8 dots in both the compounds, and this just represents valence shell of the atom, not all the electrons of the atom. Okay, so these are valence shell electrons. तो आप देखो सोडियम और क्लोरीन दोनों में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा सोडियम के साथ बिलोंग करता है तो इसको ऐसे घेर देंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्लोरीन का हो गया तो इसको क्लोरीन के साथ ऐसे घेर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर. इसको पूरा सॉलिड लाइन से घेर सकते हैं आप चाहे तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, और इसको भी आप पूरा सॉलिड लाइन से घेर सकते हैं. So this is Lewis dot structure of NaCl. So in case of any ionic compound, electron is going to be exchanged, right? So if it is due to exchange of electrons, you must know that the circle which we are drawing around the atom should not coincide on one another. So they're not going to intersect each other, or they're not going to touch each other. You can show that they're touching each other because there is a bonding between them, but they're not going to intersect each other. ये आप हमेशा ध्यान रखो. But if we talk about covalent bonds, so let's talk about some covalent bonds. So ionic compounds का ऐसा ही बनेगा, एक एटम का इधर दूसरे का उधर, और दोनों के वैलेंस शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्लियर है? So this is Lewis dot structure of NaCl. Now similarly you can draw Lewis dot structure of any metal X. Yes मान्यता. सर जैसे हम ऐसे इंडिविजुअली उसका 8 8 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, तो वो कनेक्टेड कैसे होंगे आपस में, अगर बॉन्ड कैसे बनेगा? बिल्कुल सही. अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर ये दोनों इंडिविजुअली 8 8 बॉन्ड बना रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होगा, बॉन्ड कैसे होगा? So that bond is due to, this is called ionic bond. Okay, the bond between them is called ionic bond.
An ionic bond is not formed due to sharing of electron. It is formed due to, it is a result of electrostatic attraction. Electrostatic attraction. Why? Because sodium is a positively charged cation and chlorine is a negatively charged anion. So both of them will attract one another with the coulombic force, which is kq1 q2 upon r square. अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो बताइए ये बात सही लग रही कि नहीं आपको? F is equals to kq1 q2 upon r square, ये हमने पढ़ा है, राइट? तो अगर ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे के क्लोज है और दोनों पे चार्ज ऑपोजिट हो, तो डोंट यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर? Yes, sir. एंड व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? Attraction between two atoms or molecules of different kind, right? तो बॉन्ड ऐसे बनता है इसमें. तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी डेफिनेटली, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा डायरेक्टली, राइट? सो इस तरह से हमें समझ में आया कि सर आयनिक कंपाउंड्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे. कोई भी mx कंपाउंड ले लो या mx2 ले लो. जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप MgCl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे दिखाएं. चलो सब लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कैसा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2. बताओ. MgCl का ना? MgCl2, Cl नहीं, MgCl2. कैसा होगा बताओ? सर Mg के पास 2 एटम होंगे आउटर मोस्ट में, और हाँ. दो Cl लगेंगे जिसके हम्म. पास 8 एटम्स नहीं, जिनके पास 7 एटम्स होंगे, और वो जो Mg के पास 2 होंगे वो एक एक हम शेयर करवा देंगे. ठीक है, शेयर नहीं, ट्रांसफर. हाँ ये सर. है ना? वो कैसा बना हुआ है बताओ? क्या करूं मैं? Mg लिख दूं यहाँ पे और 8 electrons 8 valence में. इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स में लिख दूं यहाँ पे. चलो आप अलग अलग 8 भी लिख सकते हो, मैं एक साथ लिख रहा हूँ दो दो करके. आप अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको साथ ही लिखना है. ये कुछ अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है अगर साथ होते हैं तो. खैर, अब क्या करूं बताइए? सर दोनों साइड्स क्लोरीन विद 8 electrons valence shell में. वेरी गुड. दोनों साइड सर क्लोरीन विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl. आप इसको चाहो तो ऐसे ले भी सकते हैं. ये तो तीनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन, एंड दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl. तो इस तरह से यस अनमोल सर समझ नहीं आया ये. समझ गया. देखो मैग्नीशियम आपको पता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है. हाँ जी सर. तो मैग्नीशियम अगर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखोगे 282, ये लिखोगे. हाँ जी सर. अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, तो क्या बचेगा? Mg2+, जिसको लिखोगे 2,8. हाँ जी. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने हाँ लिख जी. दिया. इसके वैलेंस शेल का 8वां इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे
रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब बच्चा क्लोरीन। ठीक है सर। क्लोरीन में आप एक क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हम लोग, तो 2 क्लोरीन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें 2 क्लोरीन माइनस एटम मिलेंगे। क्लोरीन माइनस का मतलब ये है कि ठीक क्लोरीन का होता है 287, अब हो जाएगा 2 8 एंड 8, तो इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको भी मैंने लिख दिया। 2 क्लोरीन है दोनों साइड में, एक ओके सर। ठीक है, ओके सर, ठीक थैंक है। तो ये हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड को। अगर सर कोवलेंट कंपाउंड हुआ तो, कोवलेंट कंपाउंड हुआ तो भी देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में क्या करेंगे हम? कोवलेंट कंपाउंड्स में सर जैसे कि मान लो कोवलेंट कंपाउंड होते क्या है, पहली बात तो क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स? So when they share the bond, हाँ, ठीक है, रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से अगर कोई बॉन्डिंग होती है तो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, या CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉन मेटल्स को जिस बॉन्ड से बॉन्डिंग होती है वो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। मेटल मेटल मेटालिक बॉन्ड, एंड ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, बट एक जनरल अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो ज्यादातर नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई भी आप कंपाउंड उठा लो जो आपको पता है H2CO3, वो आयनिक ना हो, बस सॉल्ट ना हो, मतलब H2CO3, कोई भी कंपाउंड उठा लो आप, O2 SO2, कोई भी कंपाउंड, these are all covalent compounds, these are all covalent bonds, so they are result of covalent bonds. So covalent bond होता क्या है कि सर ऐसा होता है कि जैसे दो हैं एटम, हमेशा एक बॉन्ड दो एटम के बीच में बनेगा, 3 एटम के बीच में एक बॉन्ड नहीं बन सकता, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। 3 एटम के बीच में कम से कम 2 बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड ही बन सकते, एक मतलब 2 एटम के बीच में से बहुत सारे बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन 2 एटम के बीच में ही बॉन्डिंग होती है, ऐसा नहीं कि 3 एटम मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर बॉन्डिंग हो रही है तो देयर आर 2 ways a bond can be formed. One which we have seen just now, that an atom is going to lose its electron, other atom is going to get that electron, and then they will both attract each other with Coulombic force of attraction, electrostatic force of attraction, and such bonding is called ionic bond. Now covalent bond is due to sharing of electrons, because again if one atom is capable of losing an electron, the other atom might not be capable enough to gain that electron, and if, और ऐसा भी हो सकता है कि the first atom is not capable enough to lose one electron. So in that scenario, if both have equal ability to lose or gain electrons, or almost similar, or there is less difference between their ability or electronegativity, so what happens in that scenario is they tend to share those electrons, right? They tend to share those electrons, although again there will be polarity, that most of the electrons will be shifted towards the one which has more electronegativity, but there will be no complete transfer, there will only be sharing of electrons, and such bondings which are formed due to sharing of electrons is called कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों की सेल में बिलोंग करेगा। शेयरिंग का मतलब यही होता है कि दे बोथ हैव इक्वल राइट ऑन दैट, और एटलीस्ट इफ नॉट इक्वल दे बोथ हैव राइट ऑन, कि हाँ ये है मेरा भी है, राइट। तो कैसे ड्रॉ करेंगे सर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर? बहुत सिंपल है, आप पहले इनके सबके जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको तुम लिख दो, ठीक है, और जो शेयर हो रहे हैं उनको अलग से लिख देना। जैसे कि मान लो CO2 का तुम्हें चलो ये पता है, इस तरह से है CO2, ठीक है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम पहले 4 इलेक्ट्रॉन तो लिखो कार्बन के वैलेंस शेल में, फिर देखेंगे कैसे अरेंज करना है। और उसके साथ ऑक्सीजन को हमें बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मैंने कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन। अब सर अगर इनको बॉन्ड बनाना है, अगर both of them want to form a bonds and there are 2 bonds as we can see, so in order to form 2 bonds they must be sharing 2 electrons with one another, and again ये वाला जो कार्बन है वो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इससे होगा क्या सर, कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 हो जाएंगे, और इस वाले ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 हो जाएंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आप देखो शेयरिंग कौन कौन से इलेक्ट्रॉन की हो रही है उनको पे ध्यान दो आप, ठीक है, उनको अलग से लिखेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे। देखो ऑक्सीजन,
ठीक है, दोनों को ऐसे लिख दिया मैंने, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसको थोड़ा सा दूर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ताकि अपने को सर्कल वर्कल बनाने में थोड़ा आसानी। अब क्या करेंगे, तो अब सर जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो रहे हैं उनको भी इधर लिख दो ऐसे, और फिर यहाँ पे आप लिख दो कार्बन। फिर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं वैलेंस शेल में, और वो फिर से शेयर हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, और फिर आप सर ऑक्सीजन के जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन है वो लिख, मैंने कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम नहीं लिखा है, सेम ही चीज है, ये गलती से यहाँ पे आ गया है, यहाँ कुछ नहीं, तो सेम ही चीज लिखी है। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर दिया फिर से, किसी कोई डाउट है? नहीं। नो सर। अब अगर इसको तुम्हें दिखाना है कि क्या है, तो कैन यू वी से दैट these 4 electrons which are between these two atoms, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से भी बिलोंग करते हैं और वो कार्बन से भी बिलोंग करते हैं, कह सकते हैं क्या? बताइए। यस बिकॉज दैट्स व्हाट शेयरिंग इज। तो अगर ऐसा है तो मैं ऐसा एक ड्रॉ करूंगा स्ट्रक्चर इस तरह से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन बोलेगा नहीं ऐसे अकेले तो नहीं ड्रॉ कर सकते, अपन ऐसा ड्रॉ करते, ऐसा कि चलो ठीक है वो तुम्हारा भी है और वो मेरा भी है, तो ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है, तो फिर अपन ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं शेयर। So this is nothing but a representation of how electrons are going to be shared between these 3 atoms. तो आप इसको सर्कुलर भी कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते हो, मेरे पास इतनी जगह नहीं थी तो मैंने इसे इलेप्टिकल टाइप का ड्रॉ कर दिया। All we are trying to represent here is the 4 electrons between these 2 carbon and oxygen atoms. The first ones are being shared between both of them, oxygen as well as carbon. Again, the other 4 electrons between this carbon and the other oxygen is being shared between both of them, carbon and the other oxygen. So carbon has total 8 electrons in its valence shell. Oxygen, both the oxygens have 8 electrons in their valence shells. Yes or no? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए। नहीं है तो आप मुझे मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। Now, if it is not necessarily true that Lewis dot structure can be drawn only for the molecules which follow Lewis rule. Octet rule और Lewis dot structure are two different things. Okay? ऐसे कंपाउंड जो हाइपर ऑक्टेट या हाइपो ऑक्टेट है उनका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उस केस में वैलेंस शेल में, बट हम ड्रॉ सबका कर सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन्स विल बी surrounded by the atom or how electrons will be there situated in the atom. Okay, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 8 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे मतलब ही नहीं है लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तब। ठीक है, चलो बताइए अब फटाफट ड्रॉ करके दिखाइए मुझे मीथेन का। कैसे करेंगे? सर कार्बन के 4 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके 4 साइड्स पे हम उसके इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे और साथ में हाइड्रोजन लगा देंगे क्योंकि उसके पास 1 होगा, फिर वो आपस में शेयरिंग कर लेंगे और फिर हम जो कॉमन होंगे जैसे जो भी उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन होंगे उसके राउंड एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है कि सर हम क्या करेंगे, आपने बोला मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो हम क्या करेंगे, कार्बन एटम लेंगे, पहले तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स को सर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसके चारों तरफ हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन से ही शेयर करेगा, और हाइड्रोजन के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है सर उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपको जो भी इलेक्ट्रॉन लगता है शेयर हो रहे हैं आपस में उनको हम लोग घेर देंगे। अच्छा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसका, ठीक है। ठीक है, अब जो भी इलेक्ट्रॉन सर आपको लगता है कि आपस में शेयर हो रहे हैं उनको घेर लो। तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स मुझे लगता है कि आपस में शेयरिंग इनकी हो रही है, तो मैं इनको ऐसे सर्कल में डाल दूंगा। ये कार्बन सारे इलेक्ट्रॉन लेगा, साथ ही साथ में हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए ट्यूपलेट।
2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ये कोई एटम की साइज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, ये बस रिप्रेजेंट इस बात को करता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे शेयर होंगे। ठीक है, तो आप इसको एटम की साइज से वो मत करना कि सर ये एटम तो दोनों एक दूसरे में कंसाइड हो रहे हैं ऐसा या ऐसा, इससे कुछ नहीं है। ठीक है, दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियाई। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लिया अगर आपने, तो नेक्स्ट है आप लोग अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे दिखाएं। कैसा होगा? आया किसी का? यस सर। यस सर। बताइए क्या होगा? सर जैसे नाइट्रोजन के इस बार 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी 3 साइड्स हाइड्रोजन होगा इस बार, और एक साइड पे हमारा लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, तो इस बार हम 3 साइड्स पे सर्कल ड्रॉ करेंगे शेयरिंग। ठीक, सर इस बार नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 साइड से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर होंगे ऐसे, और एक तो पेयर बन के रहेंगे ऐसे। सबसे पहले कुछ कुछ कीवर्ड्स अब आप ध्यान दें, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर बन के रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लोन पे लोन दोन। हाँ, 2 अनबॉन्डेड pairs of electron, yep, sorry, pair of electrons, two pair में two, गलत statement हो जाएगा, two unbonded electrons in a pair is called lone pair। बहुत सिंपल सा है। लोन आया है वर्ड अलोन से, जैसे लोन सर्वाइवर होता है वैसे ही लोन पेयर होता है। ठीक है, ये लिख लो, लोन पेयर होता है, अनबॉन्डेड पेयर भी बोलते हैं उसको ऐसे करके। और जब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं उनको बॉन्डेड पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर तो खैर जो भी पेयरिंग में हो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हो सकते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ही लोन पेयर बोलते हैं, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपको पता ही बॉन्ड में होता है। खैर, तो ये इस तरह का होगा सर। इसका 8 इलेक्ट्रॉन आप देख लो सबके वैलेंस शेल में है, अगर आपको डाउट है तो आप देख लो। हमें तो दिख रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन सबके, मतलब सबके क्या, हाइड्रोजन के तो 2 ही चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दो जितने भी हाइड्रोजन है सबके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है सबको? चलो लास्ट है यस सर। H2SO4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप। ऐसा होगा और कैसे होगा? या इससे आसान पहले कर लो, पहले आप लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो SF6 का या SO3 का, ऐसे किसी भी एक कंपाउंड का ड्रॉ करो।
ड्रॉ हो जाएगा तो बताएंगे सब लोग। किसका ड्रॉ किया? देखो जिसको नहीं समझ आ रहा पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा अभी। इससे कुछ है? प्रीति का कनेक्शन हमेशा खराब है। हाँ प्रीति, बताइए क्या ड्रॉ कर लिया आपने? करो जल्दी से। और आप लोगों को शायद हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपका माइक और आपका वीडियो हमेशा वर्किंग मोड में होना चाहिए और कभी भी ऑन करवाया जा सकता है। यू शुडंट हैव एनी एक्सक्यूज कि सर लाइट नहीं आ रही तो कैमरा खराब हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका वीडियो और आपका माइक ये दोनों हमेशा वर्क करना चाहिए। चलो निशांत बताओ क्या किया तुमने, कौन से वाले का ड्रॉ किया? तीनों का कर लिया? सर 2 का कर लिया, पीछे का कर। ठीक है, चलो बताओ किसका कर लिया? SF6 का कर लिया? सर यही कर रहा हूँ। बाकी SO3 का कर लिया? यस सर। बताओ कैसे करें? सर 1 मिनट में पहले इसका खत्म ही कर लूँ फिर बताता हूँ। नहीं मैं इसका बता ही दो ना, फिर खत्म कर देना। सर जैसे सल्फर के हमारे 8 एटम्स होंगे बाहर पे। 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होते वैसे तो सल्फर में। 6 से हाँ हम्म, 6 होंगे तो ठीक है। यानी कि 2 हम एक ऑक्सीजन यानी कि पर ऑक्सीजन को दे देंगे। ऐसे ऐसा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के हम 6 होंगे। हम्म, इसको भी 2-2 दे देंगे, ये सर 2 पर के बाद शेयर हो जाएंगे सर। फिर हो जाएगा। चलो मान लेता हूँ, तुम कह रहे हो तो दो इसके सर आपने दे दिए। और एक और ऑक्सीजन इधर है तो इसको भी ये कह रहे हो ना तुम? यस सर। तुमको नहीं लगता कि इसके वैलेंस शेल में सल्फर के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा? सर हम सुपर ऑक्टेट का भी तो बना ही सकते हैं लूज स्ट्रक्चर। सही कि सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा, हम ये बोल रहे हैं कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें इसमें शेयरिंग को तो वैसा होगा। ठीक है, तो इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है या ऑक्टेट से ज्यादा जा रहा है, हाइपर ऑक्टेट हो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग सर ऐसे हो रही है। तो आफ्टर शेयरिंग सल्फर के वैलेंस शेल में हो सकता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें ये मतलब है कि सल्फर के ठीक है 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ पा रहे हैं आप लोग कि ऑक्टेट रूल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि दोनों को लुईस ने दिया है तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल होने चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर एनी मॉलिक्यूल इन द वर्ल्ड if it is if sharing or transfer of electrons is possible to represent। ठीक है, मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग नहीं करते, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फेलियर ये है कि इट विल नॉट गिव यू डायरेक्शन और इट विल नॉट गिव यू एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल दैट। चलो मान लो ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा किधर, कहीं भी रहेगा या कोई एक पोजीशन होगी ऑक्सीजन की, इसके बारे में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोई डिस्कशन नहीं करता है। मींस लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल्स टू एक्सप्रेस द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसमें सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज दिखा सकते हो, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वाटर का बेंड शेप होता है या CO2 लीनियर होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा कुछ कुछ स्ट्रक्चर।
तो इसका कोई स्ट्रक्चर लुईस थ्योरी से हमें कहीं पता नहीं चल रहा है कि कैसा किधर क्या ओरिएंटेशन हो। उसके लिए फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे की थ्योरीज विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और शेडविक-पॉवेल थ्योरी, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज। तो आप सबसे पहले लिखो कि ये तो लिख लिया, अब जो मैंने बाकी एग्जांपल दिए वो आप घर से करके लाना SF6 और H2SO4 का। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये लिखो, लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लिमिटेशंस लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस थ्योरी सबका ही ऐसे लिमिटेशंस इसके ये हो जाएंगे। पहली बात तो it does not explain structure of molecules, which is highly important fact, आगे पता चलेगा आपको। it does not represent या explain structure of molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या लिमिटेशन हो सकता है इसका? अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ आएगा तो मैं बता दूं। खैर, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है जो इस लुईस से रिलेटेड चीजों में पढ़ना, वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बहुत बार क्या होता है कि किसी भी एटम पे कुछ चार्ज होता है जो हमें दिखता नहीं है बट होता है। जैसे आपको पता है साइनाइड Cn- में कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, या क्लोराइड है तो आपको पता है क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। इवन इफ इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द पिक्चर, यू कैन जस्ट calculate the charge based on the electrons unpaired or paired electrons available in the compound। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब ये है कि फॉर्मली कितना चार्ज उस पर्टिकुलर एटम पे आना चाहिए, एक किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री पे। बहुत काम की चीज है फॉर्मल चार्ज, ये आप लोग ध्यान देंगे। तो आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ साइनाइड में फॉर्मल चार्ज क्या होगा कार्बन पे, तो क्या बोलोगे? -1। -1, बिल्कुल सही सर। साइनाइड में कार्बन पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा -1। तो वैसे हम लोग सारे कंपाउंड्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सेम फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज? बताओ। देखो फॉर्मल चार्ज क्या है कि या तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अपने को पता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं कर रहा। सो इफ एन एटम हैज सम इलेक्ट्रॉन्स and if those electrons are more than what it can keep, so there will definitely be some negative charge on that atom. And if some atom has less than what it can keep, so definitely there will be some positive charge on the atom। तो पहले हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं कि पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, माइनस कर दो कितने उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्डेड पेयर में तो वो हाफ ही कंट्रीब्यूट करेगा ना। बोलो, एक बॉन्ड में एक एटम का हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे मान लो, ऐसे समझते हैं इसको कि एक एटम है ए, लिखना नहीं है अभी इसको किसी को भी, इसको समझिए पहले। एक ए एटम है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसने कुछ बॉन्ड भी बना ली, मान लो एक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। तो एक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स में ए के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बताइए। एक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने के लिए ए के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? x एक्स 4 एक्स चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देता है एक बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो एक बॉन्ड में होते दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। एक से दो भी जाते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, वो भी पढ़ेंगे। बट अभी हमें ये पता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। ठीक है, तो एक्स अगर इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है तो एक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये बना रहा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मान लो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन है वाई, ठीक है, टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन है वाई, जिसमें से कि मान लो कि कुछ दो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्ड ही नहीं बना रहा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्ड ही नहीं बना रहा, तो नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उनको बोल देंगे। तो मान लें कि कितने हो गए, नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कब हो गए जो बॉन्ड नहीं बना रहे, माइनस हाफ इंटू
नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं हाफ इंटू 2x, क्योंकि एक बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2x, अगर x नंबर ऑफ बॉन्ड्स है तो 2x इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑल अल्टीमेटली x ही आ गया। तो अगर मान लो अगर इसको मैंने माइनस किया और कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मान लो ये इसको ये पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मतलब, पॉजिटिव आने का क्या मतलब? कि सर वो डोनेट कर रहा है। वो डोनेट कर रहा है, क्यों डोनेट कर रहा है? सर स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे कुछ एग्जांपल्स में समझाता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक्चुअल एग्जांपल लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अभी तो आपको लग रहा है कि क्या कर रहे हो सर। देखो फॉर्मल चार्ज का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मल चार्ज जो होता है आपके बुक में भी लिखा होगा एनसीईआरटी में, कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम में है, माइनस टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जितने खाली इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो हमने माइनस कर दिए इसमें से, टोटल थे कुछ भी, उसमें से कुछ जो बॉन्ड नहीं बना रहे उनको माइनस कर दिए, माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड पेयर्स, ये हो गए अनबॉन्डेड पेयर्स जिसको कि लोन पेयर भी बोलते हैं, ये लोन पेयर हो गया एक तरह से ये वाला। तो इसको माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या साइनाइड ही उठा लो, चलो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। साइनाइड में आपसे पूछा जाएगा बताओ कार्बन जो है उस पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। माइनस। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है क्या? नहीं है। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या, बताइए? नहीं है। कहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहा हो? 4 है, सर एक एक है, वो दिख नहीं रहा अपने को, ठीक है। तो लोन पेयर नहीं है ना, बॉन्डेड पेयर नहीं हुआ हो तो उसको छोड़ दो। टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं अपने को? सर 3। 3, 6 है टोटल बॉन्डेड पेयर की बात कर रहे हैं। बॉन्डेड पेयर टोटल 6 है, उसको हाफ से या फिर डायरेक्ट -3 कर दो, तो हाफ इंटू 6 कितना हो गया ये 1। तो इसका मतलब ये कि इस पे फॉर्मल चार्ज जो होगा कार्बन पे वो कितना होगा 1। नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करके देखो, नाइट्रोजन पे कैलकुलेट करो फॉर्मल चार्ज कितना होगा। बताओ कैलकुलेट करके। हम्म, जीरो, बिल्कुल सही। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ इसमें हमने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? यस सर। देखो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं लिया है। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो इसमें कितने हैं हमें नहीं पता सर, इसमें कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। चलो मान लेते हैं कुछ भी, जैसे हमें दिख नहीं रहा है कुछ भी इसमें। इसका तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, इसके चलो वैलेंस शेल में 4 होते हैं, एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप वो भी लेके कर सकते हो, उसको माइनस करके देखो क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी, जो कि ट्रू नहीं है। इससे भी अच्छा एग्जांपल लेते हैं, चलो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैं समझ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, O3 का ले लेते हैं, ओजोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है।
ओजोन का एग्जांपल है, जो आपकी बुक में है, आपको समझ में भी आएगा। O3 का एग्जांपल है। तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखो, इनमें सबका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ मुझे आप। बॉन्ड बना के मैंने आपको दे दिया, अब अनबॉन्डेड बॉन्डेड सब कैलकुलेट करके आप सबका फॉर्मल चार्ज निकाल के बताओ। क्या होगा बताइए। हम्म, पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर लीजिए आप लोग। सर पहले ऑक्सीजन का 4। पहले ऑक्सीजन का 4 फॉर्मल चार्ज आ रहा है। हाँ जी सर। 4 कैसे आ सकता है यार। चलो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 ने बॉन्ड बना लिया तो इसके पास मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। इसके पास कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 3 ने बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। एक काम करते हैं, इसको कल की क्लास में मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, बट एक्चुअली में इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करता है इस ऑक्सीजन को, ऐसा होता है ये। तो इसको मैं कल की क्लास में करता हूँ, शायद सर आगे क्लास में भी। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे, और या आप पढ़ के आना एक बार फॉर्मल चार्ज अच्छे से आप लोग, ठीक है। इसको समझ के आना, फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत आसान सी चीजें, इतना कुछ टफ नहीं है। फॉर्मल चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन है, और ऑब्वियसली अगर कम ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ये, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आज के लिए मेनली हमने सीखा है फॉर्मल चार्ज और कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, विच विल स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.